Assalamu alaikum. Today we are going to learn about economic fluctuations and unemployment. This is unit number 13 of the book Economy. So let's move. So what we'll be learning over here, हमारे पास there are economies in which we faces booms as well as recessions. इकोनॉमी के अंदर दो किस्म के हमारे पास इवेंट्स होते हैं, या इकोनॉमी बहुत अच्छी जा रही होती है, हम इसे कहते हैं इट्स इन अ बूम, या इकोनॉमी बुरी जा रही होती है, दैट इज वी से दे आर इन रिसेशन. व्हाई इट हैपेंस? इट्स हैपेंस बिकॉज ऑफ द continuously good and bad shocks. Good shocks make them the economy boom, as well as bad shocks make the economy in recessions. So what are good and bad shocks? Good bad shocks जो आजकल हम देख रहे हैं, जो recent हमारा bad shock आया, that is the war between Iran and America. This is also one of the shock. Similarly, इससे पहले हमने shock देखा, कोविड का shock देखा, फिर हमने shock देखा, financial crisis का shock देखा. So we have seen a lot of shocks in the economy. So these are the different shocks in the economy that make the economy either in recession, और कुछ अच्छे शॉक्स भी हैं जिसकी वजह से बूम में चले जाते हैं और इकोनॉमी आपकी फ्लरिश करती है. So whenever there are shocks and there are fluctuations economy, what happen? GDP और unemployment जो है, they will suffer. इकोनॉमिस्ट नॉर्मली मेजर करते हैं जीडीपी बाय जीडीपी से ही मेजर करते हैं इकोनॉमी को, उसकी ग्रोथ को मेजर करते हैं, और हाउस होल्ड की बोरोइंग और सेविंग जो होती है, इट डज डिपेंड अपॉन द जीडीपी फॉर द स्मूथ कंजम्पशन. अगर हमारे पास इकोनॉमी के अंदर रिसेशन होगा तो कंजम्पशन पैटर्न हाउस होल्ड का डेफिनेटली इफेक्ट होगा. और लोग कम से कम बोरो करना शुरू करेंगे. अभी रिसेंटली एग्जांपल वॉर के लिए लीजिए. जब वॉर आया तो लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने हाथ कंट्रोल कर दिया. दे स्टॉप इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट गुड्स. इन्वेस्टमेंट उन्होंने बंद कर दी. इन्वेस्टमेंट बंद कर दी, क्रेडिट लेना कम कर दिया, जिसकी वजह से व्हाट हैपेंस व्हेनेवर देयर इज लेस इन्वेस्टमेंट, लेस बोरोइंग, लेस इन्वेस्टमेंट, सो अल्टीमेटली हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता से कंजम्पशन पैटर्न जो है वो इफ़ेक्ट हुआ. जब कंजम्पशन पैटर्न इफ़ेक्ट हुआ तो आपकी गुड्स एंड जो सर्विसेज हैं वो, लोगों की बाइंग की एबिलिटी वो आहिस्ता आहिस्ता से कम हुई और इकोनॉमी श्रिंक होना शुरू हुई. सो इस चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि हाउ इट्स मूविंग एंड हाउ इट वर्क्स. Okun's law. So we have learned different laws in economics. So this is also one of the law presented by Okun's. And what does Okun law says? Okun law says that there is an empirical relationship between the growth of GDP and the rate of unemployment. So rate of unemployment or GDP के दरमियान there is a kind of a negative relationship between the two. If we can see the graph over here, we have identified like 6 countries, और 6 countries का different data है. Almost 1960s और 70s का data लिया गया है. 1919 तक उसको plot किया है. This is called a scatter plot, and the scatter plot is normally been made in Excel. हम normally data लेके इसको draw कर सकते हैं. So with the help of that scatter plot, they have fitted the regression line, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है कि जो इसमें slope identify हुआ है, ये regression line identify हुए, regression line इन्होंने fit की है, and that regression line इसके estimates यहाँ पे already ऊपर की तरफ given है. So if you can see the regression line, the slope is mostly negative in all of the equations, and the coefficient value is also given, which is showing the distance from the zero. So ये हमारे पास negatively slope show कर रहा है. जिस तरह हमने Phillips law पढ़ा, यहाँ पर Okun's law is actually showing a negative relationship between the GDP growth rate as well as the unemployment rate. So there's a difference between unemployment with the rate of unemployment. So इन दोनों के बीच में ये change in unemployment and growth rate के बीच में हमारे पास ये slope आ रहा है. In this data we have also plotted the series
in different variables. अगर हम देखें यहाँ पे real GDP per capita लिया गया है along with the years, and over here we have taken log of GDP per capita with the years. So we can see that there is a little difference in the curve के अंदर difference कोई आ नहीं रहा. क्यों नहीं आ रहा? There is just a transformation of the variable. So normally हम जब working करते हैं, analytics करते हैं, analytically किसी चीज़ को evaluate करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि in order to deal with big numbers we take the log of it. So GDP normally millions billions में एक बहुत बड़ा नंबर होता है जिसका log लिया जाता है और उसको ट्रांसफॉर्म किया गया है यहाँ पर log स्केल रेशो स्केल के अंदर. और अगर हम फिर भी उसको दोबारा प्लॉट करें, सो प्लॉट के अंदर डिफरेंस नहीं आएगा. इट्स जस्ट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म सो दैट वी आर एबल टू handle those variables nicely. If we can see the Okun's law, how it is explaining in the figure, so it is actually showing that a fall in the output will result to rise in unemployment rate, and whenever the rise in unemployment rate, it will leads to fall in well-being. So output decline कर गया, GDP decline कर गया, GDP की वजह से unemployment rates हमारे पास बढ़ गया है. जब unemployment ज़्यादा हो गई तो हमारे पास well-being कम हो गई. well-being जो है, well-being is not kind of it's kind of a mental situation or the level of what we can say satisfaction that one is able to have whenever he's unemployed. जब कोई एक बंदा, उसकी अगर एक छोटी सी भी नौकरी हो, 10-20 हज़ार की नौकरी भी हो, लेकिन अगर वो नौकरी उसकी चली गई है तो वो एक काइंड ऑफ व्हाट वी कैन से टेंशन में आ जाएगा कि हाँ मेरी तो नौकरी नहीं है, अब मैं क्या करूँगा. So whenever there is a fall in that when they lose that job, so उसके साथ उसका mental stress और जो factors आ रहे हैं, consumption pattern तो ख़राब होगा, लेकिन उसके अलावा भी उसका जो अपना well-being है, अपनी सेहत जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता से ख़राब होना शुरू की, just because of this fear that I am unemployed and I am not able to do the things that which I used to do, which I can purchase, I can fix the different things. यहाँ मैं अपनी बहुत सी चीज़ें ख़रीद सकता था और बहुत से काम कर सकता था और सारा घर का निज़ाम चल रहा था उससे, या मेरी सारी सिस्टम चल रहा था, या फीस दे पा रहा था. अब वो नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से they are constantly in tension, and that will result in stress, and stress leads to different types of diseases, and ultimately the well-being of the people start falling. This is one of the exercises, and you have to go through those exercises and do those work. This is one more exercise. ये खुद ही पढ़ें और खुद ही करें please. Now this is the mathematical form of the relationship, and it's actually showing the change in the unemployment is related to growth rate of GDP. So GDP growth is actually proportionally related to negatively proportional related to the change in unemployment. If we normally take the data of Germany, अगर हम उसका जर्मनी का डाटा लें और रिलेशनशिप देखें या उसके पीछे ग्राफ्स के अंदर उसको देखें, 1971 और 2019 का जो स्कैटर प्लॉट के ऊपर रिग्रेशन लाइन ड्रॉ की थी, तो दीज वर द कोफिशिएंट्स 0.19 और 0.48. सो ये हमारे पास सिंपल इक्वेशन, यही इक्वेशन ली गई है और उसी के अंदर हमने वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दी हैं. सो इफ़ यू कैन सी, जो हमारे पास नॉर्मली एक इक्वेशन आती है और जिस पे हम काम करते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है. दिस इज़ व्हाट वी कैन से अल्फ़ा, और दिस इज़ अवर बीटा. जबकि ये कोफिशिएंट जो है -5.7, दे हैव टेकन इट एज अ GDP ग्रोथ ऑफ जर्मनी. ये जर्मनी का रिलेशनशिप है या जर्मनी का ग्रोथ रेट है. अगर हमने यहाँ पे देखें 0.45 ये वाली वैल्यू है, 0.42 एंड -1.19. So and we add the value of GDP, so we are able to get 1.5. So it does mean कि जब हमारे पास growth decline कर जाती है तो unemployment rate is increasing. That is leading to that principles of
Akun's law. मेजरिंग एग्रीगेट इकोनॉमी. सो एग्रीगेट इकोनॉमी को मेजर करने के तरीके आपने पढ़े होंगे एंड हाउ इट्स वर्किंग. सो मेजरिंग द एग्रीगेट इकोनॉमी by GDP, and we have kind of a circular flow of goods and services. So over here we have two sectors, firms as well as household. Firms are producing goods and services और household उसको consume करती हैं. So that's how they are producing and we are consuming in the form of and household is providing factors of production, labor and capital to the firm, and firm is producing goods and services that is being used by the household. Ultimately household जो है they are doing expenditure, so money की form में पैसे उनके वापस चले जाते हैं, और firm जो है value added services और income की और salaries की form में household को compensate करती है. So it means that we have a circular flow of GDP in terms of we are getting income, and that income leads to expenditure, and expenditure is actually that money is spent on the output की purchase के लिए, production, सबकी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होगा, और यही output again income का source बनेगा. So it means this is a kind of a circular flow diagram of our GDP, how it works, किस तरह वो उसको इफेक्ट करती है. सो इनकम वी आर अर्निंग, देन we are spending, and that is producing different output, and that output is a source of income also. सो जीडीपी का हमारे पास जो मेजर आ रहा है, जो हमने अभी तक पढ़ा और मैक्रो में बहुत से जगहों पे हमने पढ़ा, जीडीपी इज एक्चुअली द सम ऑफ सी प्लस आई प्लस डबल आई प्लस जी एंड एक्सपेंडिचर. सो वी हैव वन मोर थिंग ओवर हियर, दिस इज चेंज इन इन्वेंट्रीज इन द फॉर्म ऑफ डबल आई. So it's also kind of a form of an investment. So this is a typical equation of GDP, which is termed as aggregate GDP. So you are what we can say demand side of the economy or demand side of the expenditure. So what is the supply side? Think over it और आंसर इसका ढूंढने की कोशिश करें. These are some of the questions, you have to do it yourself. So what is the issue with the GDP? So GDP is also a good measure and how they calculate different things, but the important lapse in the GDP is that it don't calculate quality of goods. वो उसके अंदर नहीं include है, volunteer या household work is not included in GDP, and underground and illegal economic activities is not involved in GDP, क्योंकि उसके जो मोटे मोटे measure हैं C plus I plus G plus import and exports जो हैं, they are included, but these are things not included. So this is one of the biggest flaw of the GDP, that they are not counting those things. So there should be a measure that which are actually counting those things of GDP. जीडीपी को अगर हम कैलकुलेट करते हैं, उसको हम परसेंटेज फॉर्म में लेते हैं. सो हमारा परसेंटेज ऑफ चेंज इन जीडीपी इज एक्चुअली गिवन बाय परसेंटेज चेंज इन कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट जीडीपी. इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. सो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट डिमांड इज गिवन बाय कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, स्पेंडिंग. सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कंजम्पशन की इक्वेशन. जो लॉ ऑफ कंजम्पशन इनकम की जो थ्योरी है, वो हम इसी को इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, और यहाँ पे हम इसको एक्सपैंड करके इधर डाल देते हैं. सिमिलरली इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट की ये इक्वेशन है, या लॉ ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हमने किया, जो कि हम कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट के साथ उसका इनवर्स रिलेशनशिप है, इट्स गिवन हियर, and this is called net export, and G is the government expenditure. So it's the aggregate demand is actually the same equation, C plus I plus G plus X minus M, और उसको यहाँ पे expand करके हमने कहा this is aggregate demand. Now coming to the third component of this chapter, that is business cycle. अब business cycle को हम देखते हैं कि so business cycle doesn't mean कि it's all about the business, लेकिन हम इसको और चीज़ों से भी relate कर लेते हैं कि how it goes. So explaining the business cycle, अगर हम यहाँ पर देखें, so we have different fluctuations over here. The curves are going up and down. अगर हम इसको further expand करें और देखें यहाँ पे, this is given by time lapse. So हमारे पास data जो आ रहे हैं यहाँ पे, this is from 1875 to 2025. ऑलमोस्ट 150 सालों का यहाँ पर डाटा है हमें.
हमारे पास, एंड दैट हैज़ बीन प्लॉटेड अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट एज वेल एज जीडीपी ग्रोथ रेट। अगर जीडीपी के साथ हम देखें तो उसको देखते हैं कि हाउ इट इंक्रीज एंड इट इंक्रीज ओवर द टाइम, और these are the different events that has caused its increase as well as decrease। इसके जो टॉप का इवेंट है या जो हाइट है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास इकोनॉमी में बूम का पीरियड है, और जो नीचे इसका ट्रफ आ जा रहा है इसको हम कहते हैं कि इसका रिसेशन का पीरियड है। सो जो पीक आ रही है वो हमारे पास बूम शो कर रहा है इकोनॉमी का, और लोअर पॉइंट है दैट इज शोइंग द रिसेशन, और ट्रफ इज शोइंग द रिसेशन। अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे जो ट्रफ्स आ रहे हैं या जो बूम्स आ रही हैं, सो इफ वी कैन सी द स्पाइक डाउन, दिस इज एक्चुअली शोइंग द वर्ल्ड वॉर 1 यहाँ पे शो हो रहा है। नाउ इफ आई कैन सी द अदर वन, इट्स 1929, इट्स द स्टेट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन को, वर्ल्ड की डिप्रेशन को शो कर रही है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी डाउन चली गई है। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास दिस इज what we can say, this is that event जिससे बहुत लोग अनएम्प्लॉय हुए और जीडीपी काफ़ी ज़्यादा गिर गया। Similarly, if we can see over here, यहाँ पर एक और इवेंट आया, that is of 2008, जो ग्लोबल क्राइसिस आई, फाइनेंशियल क्राइसिस, which is also shown by this dip, and unemployment, and now the COVID-19, and it's also given the dip. So each and every dip has its own story. तो वो हमारे पास एक्सप्लोर करने की ज़रूरत होती है कि why it happened and why the dip has happened. So this is how every business cycle normally works this way. अब business cycle ज़रूरी नहीं कि सिर्फ GDP के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, but is also actually this is being used by different businessmen also. अब बिजनेस साइकिल हर बिजनेस का डिफरेंट होगा। चूँकि हम जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट को देख रहे हैं, तो इकोनॉमी के बिजनेस साइकिल्स होते हैं वो ओवर द लॉन्ग टर्म, लॉन्ग पीरियड्स होते हैं, 10-10 साल में, 5-5 साल, 10-10 साल लेके, और वो उसमें फ्लक्चुएशंस हम देख सकते हैं। अगर कोई छोटा बिजनेस हो तो उसकी फ्लक्चुएशंस डिफरेंट होंगी, जैसे कि लेट सपोज कोई बेकरी का बिजनेस हो या एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी हो। लेकिन अगर हम कोई बड़ा बिजनेस ले लेते हैं, लेट सपोज ऑटोमोबाइल का शोरूम ले लेते हैं, उसका बिजनेस लेते हैं, कोई फैक्ट्री का सेटअप ले लेते हैं, तो फिर उनका बिजनेस साइकिल डिफरेंट होगा, डिफरेंट टाइम के हिसाब से होगा। सो दिस इज हाउ द बिजनेस साइकिल इज एक्चुअली फॉर every business and every economic activity. Similarly, अगर हम इसको ज़रा कंपेयर करें अपनी ज़िंदगी के साथ, अपनी हार्ट रेट के साथ, so similar to this, our heart pumps and release its blood, तो ऊपर नीचे हमारी हार्ट बीट्स आती रहती हैं, it goes up and down whenever it's a straight line, so it means we are dead. So this is actually the what we can say, this is actually विद द लाइफ के साथ ही ये चीज़ें आपकी चल रही होती हैं, ये फ्लक्चुएशंस आ रही होती हैं, ये हुस्न है ज़िंदगी का। अगर ये फ्लक्चुएशन नहीं होंगी तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइफ हो नहीं सकती, फिर तो हम जन्नत में ही रहेंगे। Now coming to consumption and investment data, similar to it, तो टाइम के साथ हम यहाँ पर डिफरेंट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का डाटा भी ड्रॉ हुआ है of different countries as UK, Mexico, US and South Africa. So this is the growth rate of different growth rate of different variables has been shown at time. अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास 3 किस्म के ग्राफ्स हैं। एक हमारे पास शो हो रहा है GDP, consumption and investment. GDP is shown by the black line, consumption आपके पास green pattern शो कर रहे हैं, और investment जो red के साथ है। अगर हम कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को देखें तो दे आर गोइंग साइड बाय साइड। whenever the consumption increases, investment also increases, GDP also increases. whenever the consumption declines, तो GDP, investment declines and GDP declines. So they are kind of following one another, एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। जब एक चीज़ कम होगी तो दूसरी उसके पास हाथ कम होगी, एंड दिस पैटर्न इज सीन इन अदर मार्केट्स ऑल्सो। मैक्सिको अंदर यहाँ पर देयर इज़ अ डिप इन कंजम्पशन, क्वाइट लो डिप, और फिर हमारे पास जब यहाँ पे डिप आया तो इन्वेस्टमेंट भी डिक्लाइन कर गई, और जब कंजम्पशन इंक्रीज हुई तो इन्वेस्टमेंट भी आपकी इंक्रीज कर गई। सो दिस इज हाउ इट्स वर्किंग। These are one of the exercises. It will be better if you can go through it and do those questions. These are important for your exam also.
So how consumption and investment works. So instead of going for typical consumption theory or investment की theory, हम उसकी different factors देख लेते हैं यहाँ पे कि how it is actually helping out. So consumption के factors हमारे पास जो आ रहे हैं, let's suppose consumption smoothing is one of the important factor that is affecting our GDP. Consumption smoothing, what is consumption smoothing? It's actually our consumption pattern is relatively smooth over a time period. हम नॉर्मली जब कंजम्पशन की थ्योरी भी करते हैं तो हम यही कहते हैं कि हमारी एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ कंजम्पशन होगी, चाहे हमारे पास इनकम आ रही है चाहे हमारे पास इनकम नहीं आ रही, तो अगर वो होगी तो उसको हम कहते हैं कि ये कोई स्मूथ लेवल ऑफ कंजम्पशन है, इतना मिनिमल होगा और मेंटेन करेगा। या हर एक बंदे का अपना एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसके हिसाब से वो कंजम्पशन करता है, तो अगर वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करेगा तो उसके लिए उसी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के मेंटेन करने के लिए वो क्या करेगा, अगर उसके पास इनकम नहीं होगा सो ही विल बोरो, अगर जब इनकम होगी तो वो सेव करेगा, एक्सेस इनकम होगी तो वो सेव भी कर लेगा। सो दिस इज हाउ द कंजम्पशन स्मूथिंग एंड इट वर्क्स। एंड इफ़ इट इज़ स्टेबल, अगर इकोनॉमी के अंदर कंजम्पशन आपकी स्मूथ हो, स्टेबल हो और वो इनकम के ऊपर डिपेंडेंसी उसकी कम हो जाए या इतना सेट हो चीज़ें, सारा सिस्टम चल पड़े, तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी इन्वेस्टमेंट स्टेबल हो जाएगी और ऑटोमेटिकली आपका जीडीपी स्टेबलाइज हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग अबाउट कंजम्पशन स्मूथिंग। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द लाइफ साइकिल मॉडल ऑफ कंजम्पशन। अगर हम यहाँ पर देखें, so initially when person starts working, so uski these are showing two paths, the blue is showing path of income and red is showing the path of consumption. So blue and red path is going parallel by parallel. अब इनकम का पाथ हमारे पास, इनकम हमारे पास इतना है और जब हमने काम शुरू किया तो हमारा कंजम्पशन लेवल इंक्रीज कर गया है। सो व्हेन एवर कंजम्पशन लेवल इंक्रीजेज, सो इट मीन्स एक ख़ास स्टैंडर्ड हमने मेंटेन कर लिया है, जबकि इनकम इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई। So what will happen if the consumption is more than that of the income? So we rely on borrowing. So whenever there is a point reached when we get promoted and our consumption will remain the same and we are earning more and more income. So this is one of the stage जिसके अंदर हम अपनी accumulative सेविंग को accumulate करना शुरू कर देंगे और debt repayment करना शुरू करेंगे। So ये हमारे पास एक bigger chunk of life है। Then again we are at a position जहाँ पे हमारे पास earning कम हो जाती है than that of the consumption, then we will be running on our saving. इफ़ वी कैन रेप्लिकेट इट विद द लाइफ, तो लाइफ में हमारे पास यही होता है, जब छोटे होते हैं, अभी जॉब शुरू नहीं की होती, तो हम बहुत ही कम इनकम से स्टार्ट लेते हैं। जब ज़रा अच्छी जॉब लग जाती है, सो वी मेंटेन अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, then we got promotion, we get more and more income। एक अच्छा टाइम हमारे पास गुजर जाते हैं until रिटायरमेंट के बाद ऑब्वियसली आपका कंजम्पशन पैटर्न, कंजम्पशन तो वही रहती है लेकिन आपकी अर्निंग कम से कम हो जाती है। सो ये वो वाला लाइफ स्पैन है अगर हम इसको रियल लाइफ के साथ कंपेयर करें। सो तकरीबन 30s तक हम अपनी जॉब शुरू करते हैं और 30 प्लस 30 तो मैंने बहुत अर्ली कर दिया, लेकिन चलें मेक इट 30, और 30 से लेके वी रिटायर टिल 60। So 30 से 60 तक we are kind of having 30 years जिसके अंदर हम सारी अपनी अर्निंग और सारी चीज़ें करते हैं और उसके बाद फिर हमारी रिटायरमेंट शुरू हो जाती है। So ये वो वाला टाइम है जिसमें हम ये सारा कुछ करते हैं और इसी को लेके चलते हैं। So जो थोड़ा बहुत होशियार लोग होते हैं या उनकी अच्छी खासी सेविंग्स होती हैं, इनकम अच्छी होती है, सो दे ऑल्सो सेव फॉर दोज रेनी डेज, कि बुरे वक्तों के लिए थोड़ा बहुत बचा लें ताकि किसी के ऊपर डिपेंडेंसी उनकी ना रहे और कंजम्पशन लेवल उनका उसी तरह से मेंटेन रहे। अब how dealing with the shocks? So what will happen when we are dealing with shock? So consumption pattern अब shocks में आ रहा है कि अगर let's suppose वर्ल्ड वॉर की शॉक आ गई और अनएम्प्लॉयमेंट हो गई तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा कि they will rely on either self insurance or co insurance. So what is self insurance? Self insurance ये है कि अपनी ही उन्होंने कोई सेविंग की है और उसी को यूज़ करें। This is what called as self insured, कि खुद ही अपने आप को इंश्योर कर दे कि अगर अल्लाह ना करे कोई इस तरह का बुरा वक्त आ जाए, so they can
यूज दोज फंड्स, रिजर्व से अपने वो वाली स्पेंडिंग सेविंग जो है स्पेंड करना शुरू करते हैं। एंड को इंश्योरेंस इज दैट कि वही बंदा जो बहुत ही पहले भी उसके हालात बुरे थे, अब और भी बुरे हो गए हालात, सो दे विल रिलाई ऑन को इंश्योरेंस, कि को इंश्योरेंस में उसके फैमिली मेम्बर्स, ग्रुप मेम्बर्स, फ्रेंड्स या लोग कोई सी कम्युनिटी है जो उनकी हेल्प करे। सो दो किस्म की सपोर्ट्स आ जाती हैं, जैसे कि आप और हम गरीब लोगों की मदद इमदाद करते हैं। ऑब्वियसली उनका, लेट सपोज एक गरीब मजदूर था, मजदूरी करते हुए ऊपर से गिर गया, छत से गिर गया, उसके हाथ पैर टूट गए, हाथ टूट गया, अब वो क्या करेगा बेचारा, वो ऑलरेडी गरीब है, वो मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, अब तो और उसका कहाँ, उसका 6 महीने तक या साल तक वो इस तरह की मजदूरी भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसने कोई और ट्रेनिंग ही नहीं ली हो, तो हाथ की मजदूरी करे, वो हाथ ही उसका टूट गया बेचारे का, तो फिर वो यही होगा कि दे विल रिलाई ऑन को इंश्योरेंसेज, लोग उसकी उस तरह से मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, दे विल फाइंड आउट their way. So dealing with shocks, people go for insurance as well as co-insurance. So these are the two factors. Now if we can see in our society, so we have kind of health insurance, हमारे पास है भी स्कीम्स हैं। so अगर हम उसको आइडेंटिफाई करें कि हमारी सोसाइटी में कौन कौन सी इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, एंड दैट आर को इंश्योरेंस और सेल्फ इंश्योरेंस। अगर हम अपनी हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम्स को ले लें, लेट्स सपोज किसी आदम जी की ले लें, सॉरी जुबली की ले लें, या कोई और किसी बैंक की, कोई सी भी बैंक की हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम ले लें, सपोज हबीब बैंक की कोई हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम ले लें, या मीज़ान बैंक की ले लें, या हमारे पास को इंश्योरेंस की स्कीम्स आती हैं। तो हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस की जो स्कीम्स आती हैं दैट इज़ एक्चुअली टर्म्ड एज द सेल्फ इंश्योरेंस, और को इंश्योरेंस की जो स्कीम्स आ रही हैं वो जो आपका सेहत कार्ड है दैट इज़ अ को इंश्योरेंस, या तकाफुल इंश्योरेंस इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अ को इंश्योरेंस, कि उसमें हम एक सर्टेन प्रीमियम देते हैं और वो हमें उसके हिसाब से वो इंश्योर्ड करते हैं। या हमारे जो आगा खानी कम्युनिटी है, दे नॉर्मली पूल मनी, मंथली मनी इन इन अ पूल, एक किसी बंदे के साथ, रिलायबल बंदे के साथ, या कोई इंस्टीट्यूट इनका अपना, उसके हिसाब से उनको पुल अप करते हैं, और जो कोई कैलामिटी आती है या जिसको कोई इशू आता है, देन दे कैन like cover up that shocks with it. So this is how life works. This is actually the explanation of what we've just done. ये उसी वही ग्राफ है और उसकी सारी की सारी explanation है, तो kindly go through it. Now there are limits to smoothing credit smoothing. हमारे पास 2-3 किस्म की limits हैं smoothing की। एक हमने इंश्योरेंस और को इंश्योरेंस की बात की कि किस तरह उसको कवर अप करते हैं, फिर इसकी लिमिट्स क्या है, क्रेडिट कंस्ट्रेंट्स हैं। सो फर्स्ट इज लेट सपोज क्रेडिट कंस्ट्रेंट्स, अगर हमारे पास एक ऐसी कम्युनिटी है, ऐसी जगह है जहाँ पे क्रेडिट अवेलेबल ही नहीं है, वो बोरो ही नहीं कर पा रहा, कोई ऐसा बंदा है जिसकी जो इनकम है उसको कोई और दे ही नहीं रहा, तो फिर क्या होगा कि उसका कंजम्पशन पैटर्न इंक्रीज होने के बजाय वो नीचे चला जाएगा, वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो कर देगा। जब उसकी अपनी प्रमोशन होगी या उसकी अपनी इनकम रेज होगी, देन दे विल स्टार्ट स्पेंडिंग मोर, सो उसका कंजम्पशन जो स्मूथिंग है वो अचीव नहीं होगी। सो दिस इज हाउ देयर इज अ लिमिट टू कंजम्पशन स्मूथिंग। नाउ देयर इज वन मोर ग्रुप जिसका अगर कंजम्पशन लेवल आ रहा है और उसको, लेकिन दे वांट टू इंक्रीज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज समवेयर हेयर, लेकिन उसी को मेंटेन करने के लिए दे विल गो फॉर बोरिंग, क्योंकि इनके पास कोई क्रेडिट कंस्ट्रेंट नहीं है, किसी ना किसी ने से उन्होंने लोन मिल गया है एंड दे आर मेंटेनिंग दैट, और जब उनके पास उनकी इनकम बढ़ेगी तो वो अपना वो लोन जो है वो रीपे कर लेंगे। सो इफ द क्रेडिट इज अवेलेबल, सो पीपल विल गो विद द smoothing of the consumption curve. So if there is a credit constraint, credit is not available for a household, तो वो यही होगा कि consumption level उनका पहले decrease होगा और फिर income जब आएगी तो तब increase होता जाएगा. So this is one of the factor. Now we have another factor, and जो वो the factors that are affecting the smooth consumption is the weakness of will and limited co-insurance. So हमारे पास what is weakness of will? will is ये है कि हम कितना ज़्यादा हम अपने आप के ऊपर हम what we can say कि हमारी अपनी commitment है अपने आप के साथ, कि हमने अपनी
बुरे वक्त में इतना अपने टाइम में इतना बचाना है या इतना अपना कंजम्पशन लेवल इतना एकदम से हाई नहीं करना, ताकि कुछ ना कुछ बचत हो जाए हमारे बुरे वक्त की। जैसे कि हम डाइटिंग की बात करते हैं कि हम कहते हैं कि नहीं, हमने इतनी डाइटिंग करनी है, इतना वेट रिड्यूस करना है, तो वी स्टॉप ईटिंग एक्स्ट्रा कैलोरीज एंड वी स्टार्ट सप्रेसिंग आवर हंगर। सो अगर इसी तरह से अगर हमारी विल नहीं है और वी आर नॉट रिलाइंग ऑन इट, और हम कहते हैं ना कि हम अपनी कंजम्पशन पैटर्न को डिक्रीज़ नहीं कर सकते और उसी को हम चाहते हैं कि जो अभी आए और अभी कमाएं और अभी उड़ा लें और अभी हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर लें, दिस इज़ व्हाट वीकनेस ऑफ विल इज़। सो उसी की वजह से हमारी कंजम्पशन कर्व स्मूथ नहीं होगी। कभी पैसे ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा हम खर्च करेंगे, पैसे कम होंगे तो हम कम खर्च करेंगे। दिस इज़ ऑल डिपेंड अपॉन द वीकनेस ऑफ विल। फिर दूसरा लिमिटेड को इंश्योरेंस। अगर को इंश्योरेंस नहीं होगी तो तभी यही आएगा कि अगर किसी का नेटवर्क नहीं है फैमिली फ्रेंड्स का एंड दे आर नॉट एबल टू गेट सम असिस्टेंट फ्रॉम समवन एल्स, तो भी हमारे पास स्मूथ कंजम्पशन नहीं आ सकती। कंजम्पशन विल डिक्लाइन व्हेनेवर वी डोंट हैव एनी इनकम. Now we have limit for smoothing. Limits to smoothing is also the second limitation to smoothing of consumption curve is present bias. Present bias में ये है कि लोग यही सोचते हैं कि अभी enjoy कर लो, ज़िंदगी 4 दिन की ज़िंदगी है, बस अभी ही जो आ रहा है उसको खूब enjoy करो और आगे की देखी जाएगी. So this is what called a present bias. So if we have a high income, so the household that is in the present bias कि अभी जो आया है वही खर्च कर लो, फिर बाद की बात में देखी जाइए. सो वट एवर दे आर गेटिंग नाउ दे आर स्पेंडिंग इट, और जब इनकी इनकम डिक्लाइन कर जाती है तो इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और कंजम्पशन अगेन डिक्लाइन कर जाती है. सो देयर इज़ नो स्मूथिंग इन इट. लेकिन अगर इफ़ समवन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग विल, तो यही होगा कि जब उसकी इनकम हाई होगी सो दे विल ऑल्सो सेव. थोड़ा सा कंजम्पशन डिक्लाइन करके दे विल सेव एंड दे विल कीप that consumption level running whenever they are earning less of it. So इनका ये वाला consumption level smooth रहेगा if they have a strong will or if they are being assisted by co-insurance. So this is what called a present bias. So हमने 3-4 किस्म के factors पढ़े in smoothing the curve. One is about the what we can say the weakness of will, insurance and co-insurance, or present bias. So ये सारे or credit constraints even. So these are the 3 or 4 factors which are affecting the smoothness of the consumption pattern. So whenever the smoothness of a consumption pattern is being affected, so it will definitely affect investment. This is one of the example or question. It will be better you read it and do it yourself. Why investment is volatile? क्यों लोग वो इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाते? Volatile mean abruptly change. It will थोड़ा सा भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो जाती है तो इन्वेस्टमेंट का पैटर्न आपका ख़राब हो जाता है. वहाँ पे कोरोना आया, इन्वेस्टमेंट ख़राब हो गई. वहाँ पे वॉर आई, इस इन्वेस्टमेंट का पैटर्न ख़राब हो गया. यहाँ पर ऐलान हुआ कि जी आगे 2 दिन तक हड़तालें होंगी तो इन्वेस्टमेंट ख़राब हो गई. सो दिस इज़ हाउ इन्वेस्टमेंट इज़ डेफिनेटली वॉलेटाइल, और इन्वेस्टमेंट और स्पेंडिंग एक दूसरे को लेके चलते हैं. सो व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस that are likely to produce clusters of investment? The one is new technology and credit constraint. So whenever if the new technology is there, तो इन्वेस्टमेंट की पॉसिबिलिटी है कि अगर नई नई चीज़ों को अडॉप्ट करती है तो हमारे पास नई टेक्नोलॉजी आती है, नई टेक्नोलॉजी के साथ नई इन्वेस्टमेंट आएगी और लोग नई चीज़ें कंज्यूम करेंगे. आज मैंने मोबाइल ऑर्डर किया है, मैंने लेट सपोज हमने इन्वेस्टमेंट की है और हमने कोई 50 मोबाइल ऑर्डर किए बिल्कुल नए ब्रांड के और नए फीचर्स वाले. ऑर्डर आते आते 2 महीने लग गए. बाय दैट टाइम वो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई है. अब जब ऑब्सोलीट हो गई से जितने पैसों में हमने वो ख़रीदा है ऑब्वियसली वो नहीं बिकेगा. सो इट मीन्स टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर दैट इज़ अफेक्टिंग द इन्वेस्टमेंट. सिमिलरली अगर कोई फैक्ट्री लगाई है और उसी फैक्ट्री के अंदर हम नए अप टू डेट टेक्नोलॉजी नहीं ऐड अप करते तो वी आर नॉट एबल टू अर्न दैट मच ऑफ प्रॉफिट एज इट वॉज एक्सपेक्टेड. जस्ट रिमेंबर दिस कंप्यूटर्स थीरी. उसमें भी एंटरप्रेन्योर्स को उन्होंने यही कहा था कि जो एंटरप्रेन्योर्स नई टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अडॉप्ट करते हैं और नई चीज़ों के साथ अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, सो दे स्टार्ट अर्निंग मोर.
दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। और दूसरा क्रेडिट कंस्ट्रेंट, अगर क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा सो वी आर नॉट एबल टू गेट मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट। क्रेडिट की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज रेट के ऊपर क्रेडिट देगा या उनको अच्छी क्रेडिट की फैसिलिटीज़ होंगी तो इन्वेस्टमेंट फ्लरिश करेगी, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट फ्लरिश नहीं करेगी। Now we also have a coordination problem during the investment. How it is happening? If let's suppose someone is very enthusiastic and they are expecting high demand, just consider this this circle, the राइट सर्कल। हमारे पास हाई एक्सपेक्टेशन है डिमांड की और फर्म की, अगर वो दे आर एक्सपेक्टिंग हाई, एंटरप्रेन्योर का बहुत ही इंथुसियास्टिक है और उसकी हाई एक्सपेक्टेशन है प्रोडक्ट्स की, वो हाई कैपेसिटी पे यूटिलाइज करेगा और हाई प्रॉफिट्स मिलेंगे। वेन एवर ही विल यूटिलाइज इज हाई कैपेसिटी, फर्म भी इन्वेस्ट करेगी और हायर करेगी लोगों को, ज़्यादा हायरिंग होगी तो ज़्यादा स्पेंडिंग होगी, फर्म्स के वर्कर ज़्यादा खुशहाल होंगे और इसी तरह अगेन डिमांड इसकी इंक्रीज करेगी। सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम ऑफ दिस इज़ काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन कि किस कोऑर्डिनेशन को हम लेके चलते हैं। अगर हमारी एक्सपेक्टेशन हाई है तो हमारे पास हाई कैपेसिटी, हाई इन्वेस्टमेंट और हाई कंजम्पशन होगी। अगर लो एक्सपेक्टेशन है डिमांड की और प्रोडक्ट की, लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगी, लो प्रॉफिट्स आएंगे, इंसेंटिव नहीं होंगे कि हायर क्यों किया जाए, प्रॉफिट्स लो हैं तो नहीं हायरिंग होगी, हायरिंग नहीं होगी तो हमारे पास लिमिटेशन आ जाएंगी स्पेंडिंग की। सो देयर इज़ काइंड ऑफ एक्चुअली द प्रॉब्लम इज़ इन कोऑर्डिनेशन। हमारे पास जितना हाई एक्सपेक्टेशन हम चाहेंगे तो इतनी अच्छी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अच्छा प्रॉफिट आएगा, और लेस एक्सपेक्टेशन होगी तो लेस होगा प्रॉफिट। Coming over to the slide, अगर जितना this is what happened in by business confidence और investment का यहाँ पे pattern draw किया है of the world from 1996 to 2022. This is probably not of the world but of US. ये हमारे पास 1996 से लेके 2022 तक का डाटा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो business confidence को represent किया है with the green line. So if the business confidence increases, so there is huge investment. So whenever there is a less business confidence, so investment start declining, और हमारे पास जब investment decline करेगा तो हमारे पास GDP जो है वो aggregate demand वो भी decline करेगी। This is how it's working। यहाँ पे तो बहुत ही sharp नज़र आ रहा है कि हमारे पास confidence decline कर रहा है तो investment decline कर रही है और साथ में ही हमारा GDP decline कर रहा है। So this is how it is explaining। अगर हम इस कॉर्नर में ये वाली स्लाइड लिखें तो यहाँ पर हमारे पास रिसेशन बताए रहे हैं, जो शॉक्स आ रहे हैं इकोनॉमी के अंदर और वो शो करें कि हाउ इट इज़ वर्किंग। सो ये वाले ग्राफ सिमिलरली यही सारे ग्राफ गिवन हैं जो ब्लू, ग्रीन और रेड हमने यहाँ पे लिए हैं, ये वही बिजनेस एक्सपेक्टेशन है, इन्वेस्टमेंट है और जीडीपी है, उसी को शो करे हैं, लेकिन इट हैज़ बीन एडेड दोज डार्कर बार चार्ट्स जो रिसेशन शो करी हैं। सो ये हमारे पास एक रिसेशन आ रहा है, दिस इज़ प्रोबेबली द रिसेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसेशन और फाइनेंशियल शॉक है, एंड दिस इज़ काइंड ऑफ द कोरोना रिसेशन जो हमारे पास डिप शो कर रहा है इकोनॉमी के अंदर, जो बिजनेस कॉन्फिडेंस को उसने शैटर किया है। सो जब हमारे पास रिसेशन आता है या इस तरह की हमारे पास शॉक आता है इकोनॉमी के अंदर, वो सबसे पहले बिजनेस शॉक को डिस्ट्रॉय करते हैं और अल्टीमेटली हमारे पास इन्वेस्टमेंट एज वेल एज जीडीपी जो है वो डिक्लाइन कर जाती है। I hope this lecture will be helpful for you. This is actually the summary of all what we have done, and I hope this is very helpful lecture for you. Thank you ji, thank you so much. Allah Hafiz, Assalamu Alaikum.